قومی سلامتی کمیٹی کا ایران پر اسرائیلی جارحیت پر سخت مذمت کا اظہار۔ کمیٹی نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے دوران حملوں کو افسوسناک قرار دے دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس، اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اسرائیلی حملے خطے میں کشیدگی کو ہوا دے رہے ہیں۔ فردو، نتنز اور اصفہان میں حملے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ کمیٹی کا انسانی حقوق اور بین الاقوامی انسانی قوانین کی پاسداری پر بھی زور۔ ایران کی خود مختاری کو کسی صورت چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے خطے کے عوام کی زندگیوں کو داؤ پر لگایا گیا۔ جنگ میں امریکہ کی شمولیت کو امریکی عوام بھی قبول نہیں کر رہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اظہار خیال۔ کہا ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل نے جھوٹ کی بنیاد پر ایران پر حملہ کیا۔ پہلے جو جھوٹا الزام عراق پر لگایا گیا اب ایران پر لگایا جا رہا ہے۔ ایران اسرائیل جنگ کا تدبر اور تحمل سے حل نکالا جائے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا مشرق وسطی میں کشیدگی پر اظہار تشویش۔ کہا کہ مشرق وسطی کی صورتحال پہ قابو ہو سکتی ہے، لاکھوں معصوم جانوں کو خطرہ ہے۔ تمام فریقین زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ خطے کے استحکام اور عوام کی بھلائی کے لیے عالمی کوششیں ناگزیر ہیں۔ عالمی برادری بحران کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ایرانی سفیر رضا امیری کی ملاقات۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی، خطے میں امن و استحکام اور تازہ جغرافیائی اور سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ایرانی سفیر نے ایران اسرائیل امریکہ تنازع پر وزیراعظم کو بریفنگ دی اور ایران کے موقف سے آگاہ کیا۔ وزیراعظم نے پاکستان کے امن اور استحکام اور سفارتی حل کے اصولی موقف کو دہرایا۔ بھارت سنتاس معاہدے پر عمل کرے یا جنگ کرے، کچھ بھی کرے ہم تیار ہیں۔ پانی پر جنگ لڑنا پڑی تو اگلی جنگ بھی جیتیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بھارتی موقف پر دو ٹوک پیغام۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا اب بھارت کے پاس دو ہی آپشنز ہیں، سنتاس معاہدہ مان لے، اگر خلاف ورزی کرے گا تو تمام 6 دریا پاکستان کے ہوں گے۔ بھارت کو پہلے بھی عبرتناک شکست دی تھی اور اب بھی دیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے تنخواہ دار طبقے کو مزید ریلیف دینے کا اعلان کر دیا۔ 75 سال سے زائد عمر کے پینشنرز کو کسی بھی ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا 6 سے 12 لاکھ آمدن پر ٹیکس شرح مزید کم کر کے 1% کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ درآمدی سولر پینلز پر ٹیکس 18% سے کم کر کے 10% کر دیا گیا۔ ای وی پالیسی پر مشاورت جاری ہے۔ صنعتی پالیسی کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ حکومتی اخراجات کو کنٹرول کیا، کاروباری ماحول میں بہتری لا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے وفاقی بجٹ کی حمایت کر دی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا پیپلز پارٹی بجٹ میں حکومت کو سپورٹ کرے گی۔ پاکستان کو جنگ کی تیاری کرنی ہے، اس لیے دفاعی بجٹ میں 20% اضافہ ہوا۔ وزیراعظم، وزیر خزانہ، وزیر خارجہ کا شکریہ۔ اس دفعہ انہوں نے بجٹ پر پیپلز پارٹی کو انگیج کیا۔ یہ اچھا اقدام ہے۔ حکومت نے تنخواہوں اور پینشن میں بھی اضافہ کیا۔ قومی اسمبلی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی تقریر کے دوران اپوزیشن نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ تقریر کے دوران حکومتی وزیر حنیف عباسی اور عطا اللہ تارڑ سے پی ٹی آئی ارکان کی ہاتھا پائی کی کوشش، شدید تلخ کلامی ہوئی۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ اقبال آفریدی صاحب یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ اسمبلی نہیں چلنے دیں گے۔ حنیف عباسی، آغا رفیع اللہ، امیر مقام، عطا تارڑ اور دیگر ارکان وزیر خزانہ کے پاس ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ شور شرابہ کرنے پر پی ٹی آئی ارکان کو ذہنی مریضوں کا ٹولہ قرار دے دیا۔ بولے یہ ذہنی مریضوں کا ٹولہ ہے، ان میں وفا نام کی کوئی چیز نہیں۔ اگر یہ حرکتیں کریں گے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ ان لوگوں نے سیکیورٹی اسٹاف کو ماں بہن کی گالیاں دیں، یہ بانی چیئرمین کو بھی دھوکہ دیں گے۔ کراچی کے لیے 254 ارب روپے مختص کیے گئے، یہ رقم بڑھ سکتی ہے، کم نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا کہ عوام میں سب سے زیادہ تنخواہ اسپیکر کی ہے۔ اسپیکر کی تنخواہ زیادہ ہونے کے باوجود بھی جج کی تنخواہ کا 10% ہے۔ کم سے کم تنخواہ 42,000 ہونی چاہیے۔
अगले माह इस मामले को फाइनल कर लेंगे। सिंध असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। बानी ने हुक्म दिया तो 1 मिनट में असेंबली ख़त्म कर दूंगा। सूबे के बजट को बानी PTI के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन उनसे हमारी मुलाकात नहीं कराई जा रही। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर का पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास से खिताब। कहा, बजट पास करना हमारी आइनी मजबूरी है। वफाकी हुकूमत चाहती है किसी भी तरह बजट पास ना हो और वो एमरजेंसी लगा दें, लेकिन हम ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। मुल्क में 2 असेंबलियाँ तहलील किए जाने के बाद फैसला साजों और काबिज माफिया ने आइन तोड़ा। ये आइन तोड़ने वालों की भूल है कि इनका एहतसाब नहीं होगा। गुज़िश्ता दिनों एक रिपोर्ट को उछाला गया, कराची काबिल रिहाइश शहर नहीं। अगर कराची काबिल रिहाइश नहीं तो मुल्क भर से लोग यहाँ क्यों आते हैं? सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने सवाल उठा दिया। सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मानते हैं कराची में मसाइल हैं, मगर 3 करोड़ लोगों को किसी न किसी तरह पानी मिल रहा है, सफाई भी हो रही है, कचरा भी उठ रहा है, लोग काम पर भी जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर शहर का दौरा। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जायजा लिया। वाल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज और नौ तामीर शुदा रूट 47 का भी मुआयना किया। CBD रूट 47 को बाकायदा तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि रूट पंजाब के रोशन और पायदार मुस्तकबिल की जानिब एक और नुमाया कदम है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि पंजाब में स्मार्ट तरक्की की एक नई दास्तान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कैशलेस निज़ाम को आसान बनाने की हिदायत। कहा कि लेन देन और अदायगियों के डिजिटल निज़ाम के क़याम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अमल में लाया जाए। मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल लेन देन का निज़ाम कायम करना इंतहाई अहम है। तरक्की याफ्ता ममालिक कैशलेस निज़ाम को तरजीह दे रहे हैं। वज़ीर आज़म की रास्त निज़ाम पूरे मुल्क में नाफिज करने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार सरकारी दौरे पर तुर्की के बाद मुत्तहदा अरब अमारात पहुँच गए। इसहाक़ डार पाक अमारात मुश्तरका वज़ारती कमीशन के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, तालीम और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। अमाराती वफ़द की क़यादत शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नाहियान करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की 9 मई जलाओ घिराव की 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। जमानतों पर फैसला कल सुनाया जाएगा। अदालती अमले ने कमरा अदालत में मौजूद PTI कारकुनान और सहाफ़ियों को आगाह कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने एजाज चौधरी की जमानत की दरखास्त अलग कर दी। PTI कारकुनान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज का मामला। मुल्जिमान पर आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने 2 मुकदमात की समाअत की। PTI कारकुनान की जानिब से सरदार मोहम्मद मसरूफ, जाहिद बशीर डार और दीगर अदालत में पेश हुए। अदालत ने दोनों केसेस पर समाअत 30 जून तक मुलतवी कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल में मुलव्वस मुल्जिम उमर हयात को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। पुलिस की जानिब से मुल्जिम उमर हयात को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुल्जिम के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की गई। मुल्जिम उमर हयात के वकला की जानिब से अदालत में वालिदैन से मुलाकात न करवाने का शिकवा किया गया। गलत रीडिंग लेने वाले मीटर रीडर से छुटकारा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में मीटर रीडर्स का मरहलावार खात्मा होगा। सार्फिन खुद अपनी बिजली की रीडिंग अपलोड कर सकेंगे। ये निज़ाम के इलेक्ट्रिक के दायरा इख्तियार के अलावा पूरे मुल्क में नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने पावर डिवीज़न को मीटर रीडर्स के मरहलावार खात्मे का जामे मंसूबा तैयार करने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी। बेवा खवातीन को महज हमदर्दी नहीं, हक और सहारा भी दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बेवा खवातीन के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहा कि दीन इस्लाम ने बेवा खवातीन को इज़्ज़त, वक़ार और मुकम्मल हुकूक़ की तरग़ीब दी है। माशरे की ज़िम्मेदारी है कि वो इन खवातीन को तनहा ना छोड़े। हुकूमत पंजाब अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बेवा खवातीन और सिंगल मदर्स को खुसूसी तरजीह दे रही है ताकि वो बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें।
जाम शोरों के करीब बारातियों की गाड़ी को हादसा, दूल्हा जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी। हादसा मोटरवे पर लोनी कोट के करीब ट्रॉलर और कोस्टर के दरमियान तसादुम की वजह से पेश आया। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बारात हब से नौशेरो फिरोज जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। कराची में टैंकर गर्दी का एक और वाकया। कोरंगी वीटा चौरंगी पर वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाटर टैंकर कब्जे में ले लिया। ड्राइवर की तलाश जारी है। कानूनी कार्रवाई के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। जाँ बहक शख्स की शनाख्त मोहम्मद हाशिम के नाम से कर ली गई। शहर-ए-कायद में ज़लज़लों के झटके न थम सके। कायदाबाद और अतराफ में रात गए ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 3 रिकॉर्ड की गई। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ज़लज़ले के झटके कुछ लम्हों तक महसूस होने के बाद रुक गए। अमेरिका के ईरान पर हमले के असरात पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट पर भी पड़ने लगे। ट्रेडिंग के दौरान 4000 से ज़ायद पॉइंट्स की शदीद मंदी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स में 3856 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,16,167 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 17 पैसे इजाफा हुआ। डॉलर 283 रुपये 87 पैसे का हो गया। मशरिक़ वस्ता में जंग में शिद्दत की वजह से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 3% इजाफा। ब्रेंडेड खाम तेल 80, WTI $76 फी बैरल में तजावुज़ कर गया। आलमी गैस की कीमत $3.9 फी MMBTU हो गई। तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक तेल महंगा होने से पाकिस्तानी मईशत पर दबाव बढ़ेगा। पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे और महंगाई में इजाफा होगा। मॉनसून सिस्टम के तहत महकमा मौसमियात ने कराची में भी बारिशों की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 जून को मुल्क के बालाई इलाकों पर असर अंदाज होने का इम्कान है। 26 जून से सिस्टम सिंध पर असर अंदाज होगा। सिस्टम के तहत मुतदिल और कहीं कहीं तेज़ बारिश का इम्कान। जुमे से कराची में बारिशों का आगाज हो सकता है, जबकि हफ्ता और इतवार को बारिशों का इम्कान ज़्यादा है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हसन अली ने T20 क्रिकेट में अहम संग मील अबूर कर लिया। शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए 300 विकेटें मुकम्मल कर ली। हसन अली ने यह कारनामा सिर्फ 212 मैचेस में सरअंजाम दिया। वो T20 क्रिकेट में 300 विकेटें लेने वाले दुनिया के 39वें और पाकिस्तान के 9वें बॉलर बन गए। पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा T20 विकेटें लेने वाले बॉलर्स की फहरिस्त में वहाब रियाज 413 विकेटों के साथ सरे फहरिस्त हैं।